abolished monarchy. France abolishes monarchy and becomes a republic. This is the next subheading. And previously we have discussed about the political symbols. The political symbols were broken chain, then bundle of rod or passes, eye within a triangle radiating light, scepter, snake biting tail, pigeon cap, blue, white and red, that is the national color of France, winged woman and the law tablet. ये सारे political symbols are. This was quite an amazing piece of work by the common people to raise awareness, because most of the people were illiterate, and to make them aware, instead of giving them any piece of writing, they decided to draw some symbols, political symbols. Now this subheading is that France abolishes monarchy and becomes a republic. Republic means where people are participating in government formation and they choose their leader, and the chosen representative or the leader is now the head of the state. He will make decision for the nation of France and he will consider about the welfare of the people. Abolish, France abolishes monarchy. Abolish मतलब हो गया to undo या to cancel or to dismiss monarchy. ठीक है, तो monarchy को खत्म कर दिया गया. So this is the subheading, and we will come to know that the Constituent Assembly gave the king certain powers. It had limited, but that constitution was written by such members who were also little well off. वैसे लोगों ने constitution लिखा जो थोड़ा पैसा अपने पास रखे थे, all right, और थोड़े पढ़े लिखे थे. तो ऐसे लोग जो है 100% कॉमन पीपल और पुअर पीपल का वेलफेयर का बात जो है नहीं सोचते थे. तो यहाँ पे अभी ये पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1791 में ड्राफ्ट किया गया, उसमें पावर लिमिट किए गए. द किंग एक्सेप्टेड विद दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बट साइमल्टेनियसली ही वाज सीक्रेटली negotiating with other emperors or other rulers. Now my question is, with which country or kingdom of that time the monarch of France was negotiating secretly? With the king of Prussia. America. Prussia. Prussia. And Prussia is at present which country? Which country is known as Prussia at the present world map? Germany. Prussia is Germany. जर्मनी. तो फ्रांस के जो मोनार्क है वो इधर कॉन्स्टिट्यूशन को मान लिए हैं, अपनी पावर को कम कर लिए हैं और सीक्रेटली दूसरे एम्परर या किंग ऑफ प्रशिया से बातचीत कर रहे हैं. क्या दूसरे किंगडम में भी क्या कुछ चिंता का कारण दिख रहा था? क्या वो लोग भी चिंतित थे? किस बात की चिंता थी? प्रशिया को, ऑस्ट्रिया को या और भी यूरोप में जहां जहां किंगशिप था, उन लोगों को किस बात का चिंता सताने लगा? सर कि कहीं उनके खिलाफ भी विद्रोह न करने लगे. उनको ऐसा लगने लगा कि फ्रांस का राजा को जो है उसके पावर को जो है सीज कर दिया गया, उसके पावर को कम कर दिए गए. तो उन लोगों को चिंता होने लगा कि कहीं उनके कंट्री में भी लोग विद्रोह ना कर दे और अपने डिमांड्स मांगने लगे, क्योंकि किंग अच्छी तरह जानता था कि वो जो है लोगों से ही जो है टैक्स ले लेके अपने लिए जो है इतने पावर और प्रिविलेज को एंजॉय कर रहे थे. तो रसिया और ऑस्ट्रिया और इन एंड अराउंड के जो किंगडम थे वो लोग सोचे थे कि मदद करेंगे फ्रांस के रूलर को, वो लोग सोच रहे थे मदद करेंगे. लेकिन क्या ऐसा हुआ? 1792 में एक बार वोट हुआ
और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी रेवोल्यूशन में मूवमेंट हो रहे थे अप्रैल में, जून, जुलाई, अगस्त में, ये सारी घटना, ये सारे न्यूज बाहर बाहर दूसरे किंगडम तक पहुंच रहे थे। वो लोग चिंतित थे। अब ये लोग जो है फ्रांस के राजा को आश्वासन दिए थे कि हम लोग अपनी आर्मी भेजेंगे, we will send our army, we will send help, and we will crush the French people and we will win back the kingship, we will regain the power again. But this could not happen because the French National Assembly already declared a war against Prussia and Austria. फ्रांस के जो कॉमन पीपल का गवर्नमेंट था वो खुद ही वॉर डिक्लेयर कर दिए। कॉमन पीपल जब लड़ाई में उतर गए प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तो दूसरे किंगडम को भी जो है घुटने टेकने पड़े। उनको लगा कि लौट जाते, ये फ्रांस का मैटर है, हम क्यों इसमें पड़े और अपना नुकसान करें। सो द पीपल engaged in the war had to face certain difficulties. क्या वॉर के लिए कुछ जान देने वाली बात आ गई, कुछ खर्चे की भी बात थी? क्या कॉमन पीपल के लिए भी एक वॉर क्या कुछ खर्चीला एक ये था? यस सर। Yes, sir. तो क्या ये मुसीबत पहले वाले मुसीबत से ज्यादा था या कम था? अपनी आजादी के लिए लड़ना फायदेमंद था या अपनी गुलामी सह लेना? सर अपनी आजादी के लिए लड़ना। आजादी के लिए लड़ना। लोग हर हाल में हर कीमत चुका के अपनी आजादी हासिल करना चाहते थे। तो इस वजह से उनको बहुत डिफिकल्टी हुआ। उनको प्रशिया से और ऑस्ट्रिया से लड़ने में उनके जान का खतरा था, बहुत पैसे का खतरा था, समय की बर्बादी थी, लेकिन वो लोग इसको कंटिन्यू किए। और फ्रांस के इंटरनल कंडीशन में सुधार कभी भी नहीं आया था, लेकिन उम्मीद इन लोगों को था कि स्थिति सुधर जाएगा। औरतों को भी इसमें जो है बहुत सारे काम बढ़ गए, क्योंकि उनके हस्बैंड वॉर में इन्वॉल्व हो गए। उसके जो हस्बैंड थे या जो भी मेल मेंबर थे वो लोग सब आर्मी ज्वाइन कर लिए। अब रशिया से लड़ना था, ऑस्ट्रिया से लड़ना था, वो सब बड़ी ताकतें थे। फ्रांस में भी किंग के पास भी कुछ ना कुछ अभी भी पावर था। कोई किंग के वफादार लोग थे जो अंदर से इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ऐसी स्थिति में फ्रांस के जो है वो इकोनॉमिक लॉस हुआ और बहुत डिफिकल्टी हुआ। और जो है औरतें थे, उनको अपना घर परिवार चलाना था, फैमिली में छोटे बच्चों को देख रेख करना था, और ये सब मुसीबत को उन लोगों ने जो है किसी तरह पार कर लिया। और सिर्फ एक उम्मीद था, इन लोगों को पूरा भरोसा था कि अगर लड़ाई जीत गए तो देश की स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन सब कुछ जो उनका उम्मीद था वो पूरा नहीं होने वाला था, क्योंकि वक्त निकलते निकलते ऐसा पता लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमीर लोगों का ही कुछ ना कुछ बेनिफिट को ज्यादा ध्यान रखा गया है। इक्वालिटी पूरी तरह लोगों को नहीं मिल रहा था। और किंग को कम से कम वो लोग पावर घटाने में सक्सेसफुल हो गए थे। अब जो है कुछ उस समय पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। तो क्लासरूम में भी टीचर पढ़ा के निकलते हैं तो बच्चे कुछ तुरंत डिस्कस करते हैं, क्लासरूम अच्छा था, बुरा था, वर्क करना था, क्वेश्चन आंसर करना था, समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो फ्रांस में भी लोग आपस में मिलजुल के अलग अलग जगह क्लब बना रहे थे, बातचीत कर रहे थे कि फ्रांस का भविष्य क्या होगा, फ्रांस के लोगों के लिए अच्छा क्या होगा। तो ये क्लब्स जो है वो बहुत सारे जो है बनने लगे और लोगों का ओपिनियन जो है शेयर होने लगा। ऐसा ही एक क्लब का नाम था जैकोबिन क्लब, जो कि एक पुराना चर्च का पार्ट है। कॉन्वेंट मतलब जो है चर्च में वो पार्ट जहाँ शिक्षा दीक्षा होता है और जहाँ पे कॉन्वेंट में चर्च के लोग रहते हैं, स्पेशली नन वगैरह रहने के जगह को कॉन्वेंट बोला जाता है। तो एक ऐसा ही एक सेंट जेकब का कॉन्वेंट था, उसके
उसके बैनर में, उसके ब्रांड में एक जैकोबिन क्लब बना। Now this Jacobin club became more popular than the other clubs, and it was going to become an important part of the French rule for some moment. कुछ समय के लिए जो है जैकोबिन क्लब का जो भी इच्छा था, जो भी उसका तरीका था, वो फ्रांस के लोगों के बीच में सामने आया। तो कोई बता सकते हो जैकोबिन क्लब का कौन ये था मेंबर? Who was their leader? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। ठीक है, तो ये जो है जैकोबिन क्लब, इसमें अमीर लोग, एरिस्टोक्रेट लोग, पढ़े लिखे लोग थे, या थोड़ा लोअर क्लास के लोग थे, लोअर स्ट्रेटा से आए थे, जैसे कि लोअर क्लास, मेकर, आर्टिजन, शॉपकीपर, पेस्ट्री कुक, वॉच मेकर, प्रिंटर, सर्वेंट, डेली वेज वर्कर। तो जैकोबिन क्लब में उन लोगों की सदस्यता ज्यादा थी जो बिल्कुल गरीब थे। ठीक है, बिल्कुल जो गरीब है, लोअर स्ट्रेटा में है, अगर उनको पावर दे दिया जाए तो क्या हो सकता है? उसका नाम रहा रेन ऑफ टेरर। उसका नाम था, बिल्कुल खौफनाक स्थिति पैदा कर दी है इन लोगों ने। थोड़ा कोई बता सकते एक दो सेंटेंस की रेन ऑफ टेरर में जैकोबिन क्लब ने क्या किया होगा? कोई आइडिया? जैकोबिन क्लब में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर इसके लीडर थे, और ये लोग क्या किए होंगे? पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 सेकेंड पैराग्राफ पिक्चर के नीचे है। थोड़ा बहुत एक दो लाइन पढ़ के हिंदी में कौन बता सकता है? ये लोग अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ कपड़े पहनने लगे। कुछ नोबल्स एंड क्लर्जी पहनते थे जो कपड़े, उनको ये लोग बॉयकॉट करने लगे, और इसको कहते हैं सांस कुलॉट। कुछ लोग नी ब्रीच पहनते हैं, घुटने में एक तरह का रिंग या ड्रेस पहनते हैं। तो वो जो एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, वो लोग अपने ड्रेस वेयर में एक सर्टेन मैनरिज्म को फॉलो करते थे। ये लोग क्या किए, एक स्ट्राइप क्लॉथ पहनने लगे, जो कि डॉक वर्कर्स लोग, जो समुद्र किनारे शिप में लोडिंग अनलोडिंग करने वाले मजदूर होते हैं, वो स्ट्राइप पहनते थे। तो जैकोबिन क्लब के लोग अपने लिए ड्रेस चुनाव किए स्ट्राइप वाला क्लॉथ्स, और जो एरिस्टोक्रेट्स नी में ब्रीच पहनते थे, वो लोग बोले हम लोग इसको नी ब्रीच बिल्कुल नहीं पहनेंगे, और वो अपने मूवमेंट में सब लोगों को ये बताए कि कोई भी नी ब्रीच नहीं पहनेगा। और इस मूवमेंट को वो लोग अपना बोलते थे, अपना खास सिंबल, कि हम वो नहीं करेंगे जो हमारे नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स करते हैं, नी ब्रीच नहीं पहनेंगे। तो कुछ समय के लिए जो ये शू मेकर और पेस्ट्री वर्कर और डेली वेज अर्नर, प्रिंटर, वॉच मेकर, ये ग्रुप बड़ी जल्दी इसको पॉपुलर करती है, ये स्ट्राइप क्लॉथ। एंड द सांस कुलॉट मूवमेंट ऑल्सो गेन्ड मच पॉपुलैरिटी। बट आफ्टर that they started terrorizing the people. अब ये लोगों को वही काम कर रहे थे जो पहले राजा अपने थर्ड स्टेट के साथ जैसे बिहेव कर रहा था, जैकोबिन क्लब के मेंबर्स भी ऐसा ही कुछ जो है एग्रेसिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। One minute left. Whatever we have discussed today, we will going to continue it again in our offline classes as well as online classes. In between, you also read the book. In case there is any doubt, note down the difficult word and sentence, and we will discuss it together in our next class. This much we are having our class for today, and just
A quick reminder of what we have studied, that France abolishes monarchy and becomes a republic. So we come to know that the Constituent Assembly did not favor the poor class because it was also written by those people who had little wealth, who had education, and they wanted to keep some privilege for the rich class only. Later on, several clubs come into their country and they discussed about the rights of the people, about the benefits that can be made in the country. And in between, the king also tried to betray the country by talking or secretly negotiating with other kingdoms like Prussia and Austria. Before the king could take the step, the Constituent Assembly declared the war and fought it and won it. And later on, in 1792, 21 September, they declared France as a republic, and we will come to know that the king was also given death sentence because he had betrayed the nation. That much for today.